عذاب ہو رہا ہے یہی دیکھنا ناممکن تھا، لیکن ہو رہا ہے، پریزنٹ ہے۔ میرا نبی پاس بتا رہا ہے، جب یہ زندہ تھے پیشاب سے نہیں بچتے تھے، چغلی کھاتے تھے، عذاب بھی بتا دیا، وجہ عذاب بھی بتا دیا۔ جب وہ چغلی کھاتا تھا تب نبی کے سامنے نہیں تھا، جب وہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا نبی کے سامنے نہیں تھا، مگر نبی کے سامنے نہ ہوتے ہوئے بھی عذاب تو پریزنٹ ہے، اس کا ریزن پاسٹ ہے۔ حضور پریزنٹ بھی جانتے ہیں، حضور پاس بھی جانتے ہیں، اب عالم ما کارا وما یکون کہنے میں کیوں تکلف ہے؟ کیا کہنے۔ اور ایک لکھنوی لہجے میں بات کہہ کے نکل جاؤں کہ جب چھوٹے چھوٹے گناہ نبی کی نظروں سے نہیں چھپتے تو ان کے موٹے موٹے گناہ کیسے چھپیں گے؟ جب میرے آقا مولا کی نظر سے چھوٹے چھوٹے گناہ نہیں چھپتے تو کسی کے موٹے موٹے گناہ کیسے چھپیں گے؟ اور ایک جملہ بھی ایکسٹمپور آ گیا، اور وہ یہ کہ میرا نبی چھپے گناہ کو جانتا ہے۔ چھپے، ان کا گناہ تو چھپا تھا، تیرا گناہ تو کتابوں میں چھپا ہے۔ امام اہل سنت فضل خیر آبادی سے لے کے امام احمد رضا تک تمہارے چھپے ہوئے گناہوں کی گرفت کی ہے۔ آج کیوں نہیں قوم کے سامنے وہ کتابیں تم لاتے ہو؟ تنظیم، آرگنائزیشن، سروس دکھاتے ہو، وہ 3 کتابیں دکھاؤ جس میں چھپا ہے، اور چھپا ہے تو چھپاتے کیوں ہو؟ اور چھپانا تھا تو چھپایا کیوں؟ چھپانا تھا تو چھپایا کیوں؟ اب جب چھپ گیا ہے تو چھپے گا کیسے؟ کیا کہنے، جب چھپ گیا تو چھپاؤ گے کیسے؟ واہ واہ۔ دیکھیے، رب کو راضی کرنا یہ ہر بندے پر فرض ہے۔ وہ اللہ رحمان ہے، رحمان کو راضی کرنا یہ ہمارا فرض ہے۔ کیسے راضی کرو گے؟ آپ اپنی پریکٹیکل لائف میں آ جائیے، فیملی لائف میں۔ آپ کے یہاں میں مہمان بن کے آؤں، آپ اپنی پسند کا کھانا کھلاؤ گے یا میری پسند کا؟ آپ کی پسند۔ ہو سکتا ہے کہ تمہاری پسند ایکسپینسو ہو، لیکن جب وہ میری پسند نہیں ہے تو جی مار کے کھاؤں گا۔ میزبان کا دل رکھنے کے لیے کھا لوں گا، لیکن اگر کھانا میری پسند کا ہو۔ مہمان بنگلہ دیش سے آیا ہے، کھلاؤ گے موٹی روٹی، اس کے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ جتنے صبر و شکر سے کھائے گا سارے گناہ بخش۔ کیا کہنے۔ پنجاب سے آئے ہوئے مہمان کو بہار کا چاول کھلاؤ گے، موٹا موٹا چاول، پھر کھانے ہی سے توبہ کر لے گا۔ بالکل سیدھی سمپل بات یہ ہے کہ جسے ہمیں راضی کرنا ہے اس کی پسند، اس کی پسند جاننا ضروری ہے۔ یو پی کی پسند الگ ہے، دلی کی پسند الگ ہے، لاہور کی پسند الگ ہے، پنڈی کی پسند الگ ہے، میرپور کی پسند الگ ہے، ملتان کی پسند الگ ہے، عرب کی پسند عرب ہے،
अलग है और इन लोगों की पसंद भी अलग है, सबकी पसंद अलग है, कोई बुरी बात नहीं है। अब जिस इलाके का आएगा उसकी पसंद हम मालूम करेंगे, तो पसंद मालूम करने का तरीका भी है कि एक ही है हमारे पास। सीधे सीधे हमसे पूछ लो, हजरत साहब क्या पसंद है, दावत दे रहा हूं, क्या पसंद है? एक तरीका तो यह कि डायरेक्ट मुझसे पूछो, और अगर मुझसे कांटेक्ट नहीं हो रहा है तो फिर उससे पूछो जो हजरत साहब के करीब है, करीब है, करीब है। तो अब अल्लाह की पसंद मालूम करने का तरीका ये, डायरेक्ट अल्लाह से पूछो, और अगर डायरेक्ट अल्लाह से कनेक्शन नहीं हो रहा है तो फिर उससे पूछो जो अल्लाह के करीब है, अल्लाह के करीब है। अरे जो अल्लाह के करीब है वही हम सबका हबीब है। आप जरा गौर फरमाएं, आप जरा गौर फरमाएं। लोग, कुछ लोग कह देते हैं साहब एक हदीस शरीफ है, मैंने कहा तो हर हदीस शरीफ है। और जब अहले सुन्नत पेश करते हैं हदीस तो कहते हैं ये ज़ईफ है, हदीस ज़ईफ है। अबे ज़ईफ हदीस हदीस नहीं होती क्या? मैं आपको बता दूं, हदीस न ज़ईफ है, न हदीस सही है, न मुत्तसिल है, न मुनफसिल है। ये जितनी बहसें हैं, ये जितनी टर्मालॉजी है, ये सनद के बारे में। कौले रसूल को ज़ईफ कौन कहेगा? ये जो कौले रसूल को सहाबी ने सुना, सहाबी से ताबई ने सुना, ताबई से तबे ताबई ने, और वो पहुंचा बुखारी तक, तो इस लाइन में जो रावी हैं उन पर बहस होती है। तब इस्तिलाह सही, हसन, हसन ले जाते ही ले गई रही, जितनी भी तकसीम है, अजीज, मुत्तसिल, मुनफसिल, ये सब वहां है सनद पे। हदीस ज़ईफ नहीं है। चलो सनद को तुमने ज़ईफ कहा, इसलिए हदीस को भी ज़ईफ मजाजन कह दिया, तो क्या ज़ईफ हदीस हदीस नहीं होगी? क्या मतलब है? हमारा वालिद ज़ईफ हो जाए तो वालिद नहीं रहेगा? क्या कहने, वाह वाह। अम्मा बूढ़ी हो जाए तो अम्मा नहीं है? तो अगर हदीस भी ज़ईफ है तब भी तो हदीस है। हाँ, फर्क इतना है कि अगर हदीस सही है सनद से तो भारी भारी काम लेंगे, हलाल और हराम का काम लेंगे, अकायद का काम लेंगे, मसाइल और फिक्र का काम लेंगे। और हदीस ज़ईफ है, जिसे मेरा बाप ज़ईफ है, तो उससे हम ये नहीं कहेंगे कि 1 क्विंटल का बोरा उठाओ, पत्थर उठाओ। अब कहीं छोटा सा झोला ले लो, सब्जी लेते आओ, दरवाजे पे बैठो, बताओ हाशमी मियां अंदर है कि नहीं है, वो तारुफ कराते रहना, लोगों को हिदायत देते रहना। छोटे छोटे काम तो कर ही लेगा, तो ज़ईफ हदीस से कम फजीलत का तो पता चलेगा, तारुफ का काम तो होगा। ज़ईफ हदीसों से नबी की अजमतों की पहचान तो होगी। इसलिए ये चक्कर में कभी ना पड़ना। अब आइए, जहां नबी नहीं है जी जी, उसमें हमारा मुल्क सबसे आगे है। इंडिया की अक्सरियत में नबी गुम है। नबी आए हैं, उन्हें पता नहीं, भूल गए नबी को, भुला दिया नबी को। 33 करोड़ देवताओं में चले गए। नबी आए, सबसे पहले तो वहीं आए, हजरत आदम सबसे पहले वहीं आए, लेकिन उन्होंने आदम को नहीं माना, शीश को नहीं माना। अब उनके बाद कोई पूछे तो हैव यू एनी प्रॉफिट, तो 80 करोड़ कहेंगे आई हैव नो प्रॉफिट। अब ना होने का नतीजा ये निकला कि उन्हें ये पता ही नहीं क्या बोलने से हम बाहर होंगे और क्या बोलने से रिलीजन के अंदर होंगे। भटक रहा है उनका सर उस एक वहदहू ला शरीक के लिए, भटक रही है उनकी रूह खालिक कायनात का कुर्ब पाने के लिए। लेकिन एक नबी नहीं है, गाइड नहीं है, और नबी का आना बंद हुआ। तो जिस कौम में नबी ना हो, नबी को ना मानती हो, और फिर नया नबी आना भी बंद हो, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं,
तब रसूल नहीं गया वहां, अताए रसूल वहां गया। और नबी की कमी को वली ने पूरी किया। तो इल्म की कमी पूरी करना ये किसी जमात के हाथ में हो सकता है, मगर नबी के फरीजे को पूरा करना ये सिर्फ वली के हाथ में होता है। मगर कुछ लोग हैं जिन्होंने नबी माना, मगर नबी का जो माना है वो नहीं माना। कलमा पढ़ा, नबी को मानने का दावा किया, मगर जो मीनिंग ऑफ प्रॉफिट है वो नहीं मानते। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज प्रॉफिट विदाउट प्रोफेसी, ऐसा मानते हैं वो लोग। नबी मानना है, नबी की मीनिंग जो है, नबी का जो माना है वो नहीं माना। और ऐसे वो लोग जिन्होंने नबी का माना नहीं माना, हमने उन्हें अपना सुन्नी नहीं माना। नबी का माना देखिए, मैं तफसील में नहीं जाऊंगा, सिर्फ इशारा करके गुजर जाऊंगा। अबू जहल को नबी का माना मालूम था। उसका टकराव यह नहीं था कि नबी की मीनिंग क्या है, उसकी लड़ाई यह थी कि अब्दुल्ला का बेटा नबी है कि नहीं। नबी मानने से इनकार किया है, उसके माना से नहीं। तभी तो छुपा करके कंकरियों को नबी के सामने आया। नबी हो तो बताओ मेरी मुट्ठी में क्या है, छुपी बात बताओ, ढकी बात बताओ, कवर्ड बात बताओ, हिडन बात बताओ, गैब की बात बताओ। वो काफिर होकर नबी का माना जानता है, ये बुखारी तक पढ़ने के बाद भी नबी का माना ना मालूम हो तो ये सितम बालाए सितम है। यही वजह है कि बर्रे सगीर में उलमाए अहले सुन्नत के अलावा नबी का तर्जुमा किसी ने कुरान में नहीं किया। मैं अंदर का भेद खोल रहा हूं। आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम इश्क व मोहब्बत, मुजद्दिद दीन व मिल्लत, सुन्नियत की शान, हक्कानियत की पहचान, गौस व ख्वाजा का फैजान, अहमद रजा खान अलैहि रहमत व रिजवान, उन्होंने नबी का तर्जुमा किया। राज़ी वक्त, गजाली दौरा, अल्लामा सैयद अहमद सईद काज़मी अल बयान में नबी का तर्जुमा किया। देखिए, तुम लफ्ज़ मूसा का तर्जुमा ना करो, इब्राहिम का तर्जुमा ना करो, समझ में आता है प्रॉपर नाउन है, लेकिन नबी तो प्रॉपर नाउन है ही नहीं। इसका तो ट्रांसलेशन होना चाहिए। 30 पारे का तर्जुमा करने वाले एक लफ्ज का तर्जुमा नहीं कर पा रहे हैं, और अगर किया हो तो लाओ। उम्मा चैनल के प्लेटफॉर्म से मैं आवाज देता हूं कि सुन्नियों के अलावा अगर किसी ने लफ्ज नबी का तर्जुमा किया हो तो दिखाओ। अब तो ये जो चैनल चल रहा है इसका फैजान, अब ये तो रहमतों का की बरसात है, अकीदे का साथ है। मुझे इस मौके पर याद आया कि आज से 22 साल पहले सबसे पहले हुजूर शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन ने वीडियो टीवी के शरई इस्तेमाल पर 250 सफ़े की किताब लिखी और उसमें 15 चैप्टर बनाए, कुरान से, तफसीर से, हदीस से, और साबित किया कि फोटोग्राफी इज डिफरेंट, वीडियोग्राफी इज डिफरेंट। आज से 22 साल पहले शेखुल इस्लाम रईसुल मुहक्किकीन उनको गजालिया दौरा ने लिखा और इसी फतवे को पढ़ने के बाद लिखा। जब बड़ा कहता है तो सनद हो जाती है। रईसुल मुहक्किकीन होना उनकी सनद है। और आज अल्हम्दुलिल्लाह उम्मा चैनल उसी राह पे चल पड़ा।
آہستہ آہستہ سب کی سمجھ میں آنے لگا. ہم ان کی سمجھ کو سلام کرتے ہیں. دیر آئے درست آئے. مئی 1975 میں پہلی مرتبہ میں آیا. ہمیں تو ڈھونڈنی پڑتی تھی سنیوں کی مسجد کہاں ہے, اور اب تو الحمدللہ چننی پڑتی ہے کہ کس مسجد میں جائیں. ایک بھی چینل نہیں تھا, اور آج ماشاءاللہ کئی چینل سنیوں کے چل رہے ہیں. اور اس کی پشت پر کہ ہم گناہ نہیں کر رہے ہیں, شیخ الاسلام کی تحقیق نے ہمارے ارادوں کو مضبوط بنا دیا. کیا کہنے. آئیے اور اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ نبی تو مانا, اس کے معنی کو نہیں مانا. ابو جہل کو یہ پرابلم نہیں تھا کہ نبی کی میننگ کیا ہے, اس کو پرابلم یہ تھا یہ نبی ہے کہ نہیں. کافر ضرور تھا مگر مردانگی تھی. ہم نبی نہیں مانتے مگر مانا مانتے ہیں. یہ بزدل نہیں تھے کہ نبی تو مانتے ہیں مگر مانا نہیں مانتے. سبحان اللہ صاحب کیا کہنے مانا نہیں کیا کہنے. اب جب کسی نے میرے اماموں اکابرین اہل سنت کے علاوہ لفظ نبی کا ترجمہ جب کسی نے نہیں کیا تو کوئی بھید ہے, کوئی راز ہے. اس پر گنگا جمنی تہذیب سے دھلا ہوا ایک لفظ پیش کرتا ہوں, اور وہ یہ کہ وہ لوگ, توجہ چاہوں گا, وہ لوگ جو نبی کا ترجمہ نہیں کر سکتے انہیں نبی کی ترجمانی کا بھی کوئی حق نہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, فیضان حضور غازی ملت. واہ واہ حضرات, دیوانے کی نظروں کو جہاں دیکھ رہا ہے دیوانہ خدا جانے کہاں دیکھ رہا ہے. واہ واہ ان کو ترجمانی آپ کو سمجھانے کے لیے کہ جو انگلش میں پروفٹ کے معنی ہیں وہی عربی میں نبی کے معنی ہیں. تو اب نبی کی میننگ ڈھونڈنے کے بجائے پروفٹ کی میننگ ڈھونڈ. میننگ آف پروفٹ, میننگ آف نبی. پروفٹ اسے کہتے ہیں جو پروفیسی کرے, اور پروفیسی اسے نہیں کہتے جو آج کی بات بتائے. پروفیسی کہتے ہیں جو آگے کی بات بتائے, چھپی بات بتائے, ڈھکی بات بتائے. آپ زمین پر ہیں, قبر میں 3 ہی سوال ہوں گے, نہ 2 نہ 4. ڈھکی بات بتائے. جنت میں کوثر ہے, سلسبیل ہے, تسلیم ہے. چھپی بات بتائے. اللہ ایک ہے, چھپی بات بتائے. جبریل میکائیل اسرافیل, چھپی بات بتائے. قیامت آئے گی, چھپی بات بتائے. امام مہدی آئیں گے, چھپی بات بتائے. ایک خاص علاقے سے فتنے شیطان کی سینگ نکلے گی, چھپی بات بتائے. ابے جس علاقے کو رسول کہیں گے کہ یہاں سے زلزلے, یہاں فتنے, شیطان کی سینگ نکلے گی, تو وہاں والے ریئیکشن میں کہیں گے یار اس کو غیب داہی نہ مانو تاکہ بات پہ بھروسہ نہ رہے. پروفیٹ اسے کہتے ہیں جو پروفیسی کرے. ایک اور انگلش ورڈ ہے
फ्यूचर के बारे में कुछ बोलने के लिए, उसे फोरकास्ट कहते हैं ना, फोरकास्ट। जैसे कि नहीं, कोई भी फोरकास्ट हो सकती है, ये भी फोरकास्ट हो सकती है, जिसे पेरिस वाले ने कितनी फोरकास्ट कर डाली। फोरकास्ट के अगले 24 घंटे में बूंदाबांदी का इम्कान है, रिमझिम बारिश हो सकती है, मौसलाधार बारिश हुई। मुझे वो बोले वाला कैलकुलेशन गलत हो गया, कंक्लूजन गलत हो गया। वाह भाई वाह, बूंदाबांदी की जगह मूसलाधार हो गया। वाह, तो ऐसे फोरकास्ट पे भरोसा मत करना। हाथ की लकीर देख के एक पंडित बोला, खान साहब आज मंडे है, फ्राइडे को तुम मर जाओगे। सैटरडे को डंडा लेके खान साहब ढूंढ रहे हैं पंडित को। तू बोला था फ्राइडे को मर जाऊंगा, सैटरडे में जिंदा हूं। वो पंडित ने जान बचाने के लिए कहा, खान साहब जा हाथ दिखाओ। तो उन्होंने हाथ दिखा, ओ हो, तुम्हारी डेथ लाइन जो है वो गायब हो गई, जान बची। सितारों को देखकर, हाथ की लकीरों को देखकर, स्टारिज्म से, पामिस्ट्री से आगे की बात बताना हो रहा है। लग गया तो तीर, नहीं तो तुक्का। क्या बात है। लेकिन हालत जंग में, ड्यूरिंग वॉर, आई एम यूजिंग ड्यूरिंग वॉर इंटेंशनली, इसलिए कि लड़ाई की हालत में बड़े से बड़ा कर्नल, बड़े से बड़े जनरल को पता नहीं कि आर्मी का सोल्जर कहां होगा। जब दो फौजें आपस में भिड़ जाएं तो जनरल कर्नल को छोड़ो, खुद सिपाही को नहीं मालूम मैं लड़ते लड़ते आगे जाऊंगा या हटते हटते पीछे जाऊंगा या डिफेंस में राइट हो जाऊंगा या लेफ्ट हो जाऊंगा। हमें लड़ने वाले को अपनी जगह नहीं मालूम। ऐसी अनसर्टेनिटी में, ऐसे गैर यकीनी हालात में अगर मेरा नबी मैदान में लकीर खींच कर कहे अबू जहल यहां मरेगा, अतबा यहां मरेगा, शैबा यहां मरेगा, तो कहीं भी लड़े, मरने के लिए लकीर पे आना पड़ेगा। अबू जहल यहां मरेगा, अतबा यहां मरेगा, शैबा यहां मरेगा, कहीं भी लड़े, मरने के लिए लकीर पर आना पड़ेगा, क्योंकि ये किसी नुजूमी का इल्म है, नुजूम नहीं, नबी का इल्म गैब है। एक साहब को तकलीफ हुई, कहने लगे हदीस सुनो। क्या हदीस? वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैदान महशर में मैं हौजे कौसर के सामने रहूंगा, पास रहूंगा, लोगों को जामे कौसर पिलाऊंगा। कुछ फरिश्ते चंद लोगों को घसीटते हुए जहन्नम की तरफ ले जाएंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछेंगे, अरे ये मेरे साथ उठे बैठने वालों को कहां ले जा रहे हो? तो फरिश्ते कहेंगे, या रसूल अल्लाह, आप नहीं जानते कि आपके बाद इन्होंने क्या क्या बीदत है, क्या क्या गुमराहियां की हैं, इसलिए ले जा रहा हूं। देखो फरिश्ता कह रहा है, या रसूल अल्लाह आप नहीं जानते। अगर फरिश्ता कह रहा है कि आप नहीं जानते तो गैबदा कैसे हुए? ये हदीस पेश करते हैं। अपर चैम्बर खाली है, जुबान पे जो रख दिया गया वही लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है, उसका सीधा कनेक्शन विजडम से नहीं है। न ऊपर विजडम है, न नीचे विजडम टीथ है। ऐसे अल्फाज है जिसमें सिर्फ टीस है। आप और फरमाए, मैंने कहा इसी हदीस से इल्म गैब साबित होता है, इसी हदीस से इल्म गैब साबित होता है। फरिश्तों ने कहा, या रसूलल्लाह आप नहीं जानते आपके बाद क्या क्या इन्होंने जलालतें की हैं। सबसे बड़ी जलालत तो ये कि जलालत ही का नाम हिदायत रख दिया। बड़ी बड़ी जलालतें की है, उनमें जलालत यह है कि जलालत ही को हिदायत समझते हैं। आपके बाद इन्होंने बड़ी बड़ी गुमराहियां की हैं, आप नहीं जानते। मैंने पूछा ये फरिश्ते कब कहेंगे?
कब मैशर में कहेंगे? और मैंने कहा नबी कब कह रहा है? मदीने में कह रहा है। अभी नबी मदीने में है और मैशर का वाकया बयान कर रहे हैं। मैं कौसर पे रहूंगा, ये गायब है। मैं कौसर का जाम पिलाता रहूंगा, ये भी गायब है। फरिश्ते सामने से कुछ लोगों को ले जाएंगे, ये भी गायब है। और फरिश्ते कहेंगे या रसूल अल्लाह आप नहीं जानते, ये नबी पहले ही से जानते हैं। अब इसके बाद दूसरा लफ्ज है, ये बड़ा तवील मौजू है, कभी इंशाअल्लाह मौका मिला तो माने नबूवत और मकाम नबूवत पर और बात होगी। अभी तो वो बात हो जो रब ने की। या अय्युहन नबी, अब इसका तर्जुमा, या अय्युहन नबी, हाँ ताकीद का है, या अय्यो, ये दोनों पुकारने के लिए। अय्यो भी एक हर्फ है अरबी में जो पुकारने के लिए यूज होता है, और आप भी उसको यूज करते हो। याद दिला दूं सिर्फ, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलवातु वत्तय्यबात, अस्सलामु अलैका, वहां या नहीं है। अय्युहन नबी, हम तो सिंगल या से पुकारे, तब तो इतना बरहम हो गए, और अल्लाह डबल या से पुकार रहा है। या से भी और अय्यो से भी। हमें सबसे पहले खुदा ने पुकारा है, पहले उसे रोको, फिर हमको टोको। जो रब ने चाहा वही हम सब ने चाहा। अच्छा एक बात बताइए, अल्लाह मकान से पाक है ना? लिमिट से, लिमिटेशन से, डायरेक्शन से पाक है। अल्लाह ने जब पुकारा तो मकान में था कि लामकान में? जिब्रील अमीन ने कलाम लिया, अल्लाह जाने अल्लाह कहां, मगर वो वहीं से कह रहा है या अय्युहन नबी, और उसकी शान है लामकान। नबी मकान में, पुकारने वाला लामकान में। अब इनको समझ होती तो समझ जाते कि जब लामका से मकान वाले को पुकारा जा सकता है तो मकान से मकान वाले को क्यों नहीं पुकारा जा सकता? तो नबी का पूरा तर्जुमा फिट कर लो, या अय्युहन नबी का कंप्लीट ट्रांसलेशन ये है, ए बुलंद रुतबा इंसान, मबूस मिन अल्लाह होकर गैब की बातें बताने वाले। अब ऐसे को भेजकर फरमाता है रब, ये आए नहीं है, इन्ना अरसलना, हमने इरसाल किया है। ये कहीं से निकला हुआ नहीं है, कोई गुरोह बनाकर नबूवत का दावा नहीं कर रहा है, ये किसी का गुलाम भी नहीं है। नबी तो गुलाम होता ही नहीं, नबी किसी नबी का गुलाम नहीं होता। प्रॉफिट इज नॉट स्लेव ऑफ एनी प्रॉफिट, प्रॉफिट इज स्लेव ऑफ अल्लाह अलमाइटी, नॉट प्रॉफिट। यही तो मौजिज़ा है मेरे नबी का कि पहले गुलाम फिर कुछ भी दावा करो। हजरत गिरामी तवज्जो चाहूंगा, हम लोग गुलाम हैं, इसीलिए हम लोग नबी होने का दावा नहीं करते। मैं अपने बारे में बोल रहा था, कहीं और चिपक जाए तो उसकी किस्मत। आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, वी आर स्लेव, हम गुलाम हैं नबी के, हम गुलाम हैं मोहम्मद के, हम गुलाम हैं अहमद के। तो मोहम्मद का गुलाम
غلام ہوگا نبی نہیں. احمد کا غلام غلام ہوگا نبی نہیں. علی کا غلام بھی نبی نہیں ہوگا. جب علی نبی نہیں تو غلام کیسے نبی ہوگا؟ یہ ایک بات بتا رہا ہوں. تو رب کہہ رہا ہے ادھر ادھر دھیان مت ڈالنا. یہ سیلف میڈ پروفٹ نہیں ہے. انا ارسلنا کا میں نے بھیجا. ارسال کے لیے 3 بات ضروری ہے. بھیجنے کے لیے, ہر بھیجنے کے لیے 3 بات ضروری ہے. بھیجنے والا ہو, نہیں تو کون بھیجے گا؟ آنے والا ہو, نہیں تو کیا بھیجے گا؟ پانے والا ہو, نہیں تو کہاں بھیجے گا؟ اللہ نے بھیجنا کہا ہے, ارسلنا کا تمہیں بھیجا ہے. تو اس بھیجنے میں بھی تینوں ہونا چاہیے. آپ اپنی ڈیلی پریکٹس میں دیکھو نا, آپ نے میرپور خط بھیجا, بھیجنے والے آپ, جانے والا لیٹر, پانے والا آپ کا باپ. اور یہ تینوں الگ الگ ہیں. بھیجنے والا جانے والے کی طرح نہیں. جانے والا لیٹر ہے, بھیجنے والے کی طرح لیٹر نہیں. اور یہ ابا کی طرف گیا, ابا لیٹر کی طرح نہیں. بھیجنے والا خدا, آنے والا مصطفیٰ. بندوں کی طرف نہ خدا نبی کی طرح ہے, نہ نبی بندوں کی طرح ہے. ارسلنا کا ہم نے ارسال کیا. بھیجنے والا اللہ, آنے والے رسول اللہ, بندوں کی طرف. دوسرے لفظوں میں بھی یہ بھی کہہ سکتے ہو کہ خدائے بزرگوں برتر نے نیچے والوں کی اصلاح کے لیے, پراپر گائیڈنس کے لیے بیچ والا بھیجا. خدا اور بندے کے بیچ کی کڑی ہے نبی. اسے اندازہ لگاؤ. کیا اندازہ لگاؤ؟